بابا نادی اپنے پریوار والوں کے ساتھ دعوت میں تو نہیں جاتے ہیں، لیکن وہاں سے نکل کر کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور کشتی انہیں سمندر اور ندی پار کرتے ہوئے ایک انجان جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیتی۔ بابا نادی سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، پھر وہ فرشتوں کے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دراصل وہ لڑکی جن بادشاہ کی بیٹی سانو ہوتی ہے، وہ بابا نادی کو جگا کر اپنے ملک میں لے کر جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ تم میرے بابا سے یعنی جن کے بادشاہ سے ایک دلی آرزو مانگ لینا، وہ ضرور پوری کریں گے۔ لیکن نادی کو پتہ نہیں کیا سوچتا ہے، وہ جن کے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سانو اور اپنے پوتے کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ اس پر جن کا بادشاہ بھڑک جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا جاننے کو پوری کہانی ضرور سنیں۔ یکا یک یوں لگا کہ آسمان کی بجلی بڑے زور سے کڑکی اور قریب ہی آ کر گری ہے۔ کیا کہا؟ کیا گستاخی بڈھے! جنوں کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تمہارے پوتے کے ساتھ؟ بولو، یہی کہا ہے تم نے؟ نادی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بولو، میری بات کا جواب دو۔ بادشاہ نادی کی طرف آنے لگا، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ نادی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ ایک آدم زاد ایسی گستاخی بھی کر سکتا ہے؟ ہماری بیٹی ایک بڈھے مخلوق کی بہو بن سکتی ہے؟ نادی اس کی آنکھوں کے شعلوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ تم نے بہت بڑا اور ناقابل معافی جرم کیا ہے بڈھے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے ان خادموں کی طرف دیکھا جو اس سے کچھ دور آنکھیں جھکائے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے تھے۔ لے جاؤ اس گستاخ کو اور پھینک دو اسے اندھے کنویں میں۔ یہ حکم سنتے ہی کئی خادم بیک وقت نادی کی طرف بڑھے۔ جواب گر پڑا تھا، رحم میرے سرتاج رحم۔ یہ کہنے والی ایک بڑی خوبصورت خاتون تھی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں سے بھاگی ہوئی آئی تھی اور بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ رحم؟ کس پر رحم؟ اس گستاخ بڈھے پر؟ ہاں میرے سرتاج، میرے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ ہاں، وہ یہ صدمہ سہ نہیں سکے گی۔ بادشاہ نے اپنا دایاں ہاتھ ہلایا۔ خادم جو نادی کو اٹھانے ہی والے تھے رک گئے۔ سانو کی ماں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سانو کے ابا جنوں کے بادشاہ کی بیٹی اور غریب مفلس آدم زاد کے پوتے سے اس کی شادی سوچا تم نے؟ بادشاہ گرجا۔ خاتون خاموش رہی۔ بادشاہ نے حکم دیا، بلاؤ سانو کہاں ہے؟ یہ حکم سنتے ہی کئی خادم دروازے کی طرف بھاگ گئے۔ چند لمحوں کے بعد سانو آ گئی۔ وہ روتی رہی تھی، اس کی آنکھیں اب بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ سانو، جی ابا جان، کیا کہتی ہو تم؟ بادشاہ کا لہجہ ابھی تک غضبناک تھا۔ ابا جان، میری ماں نے ٹھیک کہا ہے بادشاہ گرجا۔ سانو نے کچھ کہنے کے بجائے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا۔ بادشاہ 2-3 لمحے سانو کو گھور کر دیکھتا رہا، پھر ان خادموں کو جنہوں نے نادی کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور اپنے مالک کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، مخاطب کر کے بولا، جاؤ لے آؤ اسے، کسی کشتی میں بٹھا کر لے آؤ جس میں یہ آیا تھا۔ خادموں نے ادب سے سر تسلیم خم کر دیا۔ بادشاہ نے بڑے غضبناک لہجے میں کہا، اور اوے بڈھے، کان کھول کر سن لے، کبھی تمہاری زبان پر میری بیٹی کا نام نہ آئے اور تم کبھی ادھر آنے کا سوچنا بھی نہیں، سن لیا؟ نادی نے ہاں میں سر ہلایا اور بادشاہ تیزی سے دروازے کی طرف جانے لگا۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی بھی چلی گئی۔ ایک خادم بیٹھ گیا اور نادی کو اپنے سانوں پر بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ نادی کے قدم ڈگمگا رہے تھے، خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ سانو اس کے قریب پہنچ گئی اور بولی، بابا جی، میں بڑی شرمندہ ہوں، آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں سانو بیٹی، مجھے معاف کر دیں بابا جی۔ سانو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رو نہیں بیٹی، تمہارے ابا جی نے بالکل درست کہا ہے۔ کہاں جنوں کے بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ایک غریب بدحال ملاح کا پوتا۔ میں نے بڑی ناجائز بات کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سانو نے نادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، معاف کر دیں نا؟ اچھا بیٹی، معاف کر دیا نا؟ ہاں۔ اور نادی نے اپنا دایاں ہاتھ بڑی شفقت سے سانو کے سر پر پھیرا۔ خادم ابھی تک اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ نادی اس کے سانوں پر بیٹھ جائے تو اس سے باہر لے جائے۔ سانو نے اس خادم سے کہا، اس طرح نہیں، تخت لاؤ اور بڑے احترام سے لے جاؤ۔
वो खादिम उठ बैठा। शहजादी जी, खादिम कहना चाहता था कि बादशाह ने उसका हुक्म नहीं दिया था कि सानो बोली, मैंने जो कहा है वही करो। खादिम ने सर झुका दिया। 4 खादिम तख्त ले आए। नादी उस पर बैठने लगा तो सानो ने अपने कुर्ते के नीचे हाथ डाला और उसके हाथ में असरफियां चमकने लगी। ले जाइए बाबा जी। सानो ने असरफियों वाला हाथ नादी की तरफ बढ़ा दिया। नहीं बेटी, मुझे इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेरी खातिर ले लीजिए, सानो ने कहा। नादी ने वो असरफियां अपने कुर्ते की जेब में डाल दी और खादिमों के हाथ तख्त के पाइयों की तरफ बढ़ने लगे। बाबा जी, सानो ने नादी को तख्त के ऊपर बैठते हुए कहा, खुश रहें और अच्छे दिनों का इंतजार करें। तुम भी सदा सुखी रहो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। सानो की माँ आई और सानो का हाथ पकड़कर उसे ले गई। सानो अभी तक रोए जा रही थी। लगता था कि वो अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही है और उसकी कोशिश में उसकी बार बार हिचकियां बंध रही थी। उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले आई और उसे मखमल के गद्दे पर बिठा दिया और खुद उसके सामने दूसरे गद्दे पर बैठ गई। सानो, मेरी प्यारी बेटी। इसके जवाब में सानो अपनी उंगलियों से रुखसारों पर बहते हुए आंसू पोंछने लगी। वो बहुत रो रही थी। यह अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरी बेटी। तुम जानती हो तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या मोहब्बत करता है? सानो के इन अल्फाज पर उसकी माँ उसे हैरत से तकने लगी। सानो, ये अल्फाज तुम कह रही हो? हाँ। नहीं मेरी बेटी, ऐसा मत कहो। अगर तुमसे उन्हें बेपनाह मोहब्बत ना होती तो उस बुढ़े का जुर्म कैसे माफ कर देते? माफ कहाँ किया है? माफ नहीं तो और क्या किया है? उसे वापस जिंदा सलामत भेज दिया है। सानो खामोश रही। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी हिचकी बंधती जाती थी। बेटी, जरा सोचो, जो बात उसने कही है वो कोई आदमजात कर सकता है? वो कहाँ और हम कहाँ, हम और मखलूक और वो और मखलूक। तो उससे क्या हुआ अम्मी जान? उससे कुछ नहीं हुआ। जरा सोचो, तुम शहजादी हूँ, जिन्नों के बादशाह की इकलौती बेटी हूँ, ये बात तुमने क्यों भुला दी? अम्मी, ये कहकर सानो चुप हो गई। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बाबा जी के यहाँ खुश रहूंगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जिन शहजादी एक मल्लाह के घर कभी खुश नहीं रह सकती। मैं रहूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं वहां जाऊंगी। पागल हो गई हो सानो? पागल ही सही, मगर ये मेरा फैसला है। सानो की माँ को उम्मीद नहीं थी कि मामला इस कदर बढ़ जाएगा। उसने अपने दोनों बाजू फैलाए और बेटी के चेहरे को उनकी गिरफ्त में ले लिया। पागलपन मत कर सानो, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और देखो, तुम कभी अपने महल से बाहर निकली ही नहीं हो। तुम्हें क्या खबर कि गरीब आदम जात कैसे कैसे छोटे मिट्टी और ईंटों से बनाए हुए घरों में रहते हैं और वो क्या खाते हैं, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। सानो की माँ को पूरी तवक्को थी कि उसके अल्फाज का सानो पर जरूर असर होगा, मगर सानो बोली, मुझे बाबा जी ने सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? उनके कैसे मकान होते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। सानो की माँ कुछ और कहने वाली थी कि बादशाह आ गया। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? इसका पागलपन दूर हुआ या नहीं? दूर हो जाएगा, सानो की माँ बोली। क्यों सानो? बादशाह ने सानो से पूछा। अब्बा जान, मैं आपसे कैसे गुस्ताखी कर सकती हूँ? आपका हुक्म मानूंगी, चाहे मैं मर जाऊं, मगर जो आप फरमाएंगे वही करूंगी। सानो की माँ ने अपने शौहर को फिक्रमंदी से देखा और अपने होठों पर उंगली रख दी। बादशाह वापस चला गया। जिन्नों के बादशाह के महल से दूर उसके 4 खादिम नादी के तख्त के चारों पाए पकड़े तेजी से चले जा रहे थे। नादी हैरान और परेशान बैठा था। उसे रह रहकर सानो का ख्याल आ रहा था। बेचारी कितनी दुखी नजर आती थी। उसे इन असरफियों का ख्याल भी आ गया जो उसके लंबे कुर्ते की जेब में पड़ी थी। मैं इन असरफियों का क्या करूंगा? मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा, किसी को उनके बारे में नहीं बताऊंगा। मरते वक्त अपने पोते माली को दे जाऊंगा। ये सोचकर उसने अपना हाथ जेब से निकाल लिया और इर्द गिर्द देखता। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे काले काले पहाड़ खड़े थे। कहीं कहीं उनको चोटियों पर बर्फ भी नजर आ रही थी। हिरन और जंगली जानवर भी नजदीक दौड़ रहे थे। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये सवाल एकाएक उसके जहन में आ गया और वो उन वाकयात को याद करने लगा जो पिछले चंद रोज में उसे पेश आए थे। जिन उसका तख्त उठाए आगे ही आगे चले जा रहे थे। अब कुछ दूर एक चमक सी दिखाई दी। ये दरिया के पानी की चमक थी। और थोड़ी देर बाद जिन नदी का तख्त दरिया के किनारे उस जगह रख रहे थे जहाँ नादी की पुरानी कश्ती साहिल के साथ खड़ी थी। वो हैरत से सोचने लगा, ये कश्ती तो डूब गई थी, सही सलामत कैसे रही? एक जिन ने उसे आराम से अपने ताकत और बाजू में उठाया और कश्ती में बिठा दिया। कश्ती के अंदर उसकी वो लाठी भी मौजूद थी जो बुढ़ापे की में उसका सहारा बन गई थी। इसके अलावा वो 2 चप्पू भी थे
वो कश्ती में बैठ चुका था। अब बाकी तीनों भी जिन भी आ गए। दो जिन्हों ने चप्पू संभाल लिए, एक कश्ती के एक सिरे पर बैठ गया था और दूसरा बाएं जानिब। कश्ती दरिया का सीना चीरते हुए चली जा रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नादी ने वो जगह पहचान ली जहां उसकी कश्ती बंधी रहती थी और जहां वो घंटों बैठा रहता था। कश्ती किनारे लग गई थी। एक जिन ने नादी को उसकी लाठी के सहारे उठाकर किनारे पर पहुंचा दिया। बाकी तीनों भी बाहर निकल आए। एक ने कश्ती के रस्से को दरख्त के साथ बांध दिया। नादी कश्ती से दूर बैठा था। चारों जिन उसके इर्द गिर्द सर झुकाकर खड़े थे, जैसे उसके हुक्म के मुंतजर हों। क्या आपको घर तक ले जाएं? एक जिन ने बड़े अदब और एहतराम से पूछा। नहीं, मैं अपने घर खुद जाऊंगा। हमारे लिए हुक्म क्या है? दूसरे जिन ने सवाल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए। चारों ने एक साथ अपने सर झुकाए और देखते ही देखते दरिया में उतर गए। वो यूं पानी में चले जा रहे थे जैसे खुश्की में कदम उठाए जा रहे हों। नादी ने चंद मिनट तक उन्हें देखा और फिर उनसे नजरें हटा ली। वो अपनी लाठी के सहारे खड़ा हो गया और चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता एक कदम उठाता रहा। कुछ दूर उसका मकान की दीवारें दिखाई दे रही थीं। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसका पोता उसे मिल जाए। वो अभी चंद कदम ही चला था कि माली दौड़ता हुआ आया और दादा जान कहकर उससे इस तरह लिपट गया कि वो खड़ा ना रह सका और लड़खड़ा कर गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से नादी के बाएं घुटने पर चोट लगी, मगर अपने प्यारे पोते से मिलकर उसे इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकता था। खुशी में उसे अपनी चोट का भी एहसास नहीं हुआ। लाठी उसके हाथ से निकलकर कुछ दूर जा गिरी। माली ने अपने दादा जान को उठाने की कोशिश की। नादी ने उसे लाठी पकड़ाने का इशारा किया। लाठी हाथ में आई तो वो उस पर सारा जोर डालकर उठ बैठा। दादा कहाँ चले गए थे? नादी हंस पड़ा। बस बेटा, चला गया था, खुद नहीं गया था, किस्मत ले गई थी। कहाँ दादा जान? बताऊंगा, सुनाऊं? सब लोग ठीक हैं? सब ठीक हैं, तुम्हारे लिए बड़े परेशान थे। शुक्र है आ गए हो दादा जान। हाँ, मैं हर रोज यहाँ आकर देर तक बैठा रहता था। अम्मा कहती थी बस करो, अब डूब मरा है तुम्हारा पागल दादा। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, पर मैं उसकी बात नहीं मानता। उसने कहा तो ठीक है। क्या दादा? मैं सचमुच डूब गया था। ये सारी बातें तुम सबको बताऊंगा। दोनों दादा पोते आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगे। घर से कुछ दूर ही थे कि माली की माँ बक्सू की नज़र उन पर पड़ी। वो तेजी से आई। पहले तो उसने अपने पांव हाथों की हथेलियों से आंखें मली और फिर घूर कर नादी को देखने लगी। अम्मा, मैं ना कहता था कि दादू आ जाएगा? देख लो, आ गया ना। बाबा तो सचमुच आ गया है। माँ का ये फकरा सुनकर माली गुस्से से बोला। अम्मा तो देख नहीं रही है दादा जान को? देख तो रही हूं, पर यकीन नहीं आता। अम्मा, मेरा दादू सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। उसी असना में घर के कई लोग भागते हुए आ गए। वो सब नादी को देखकर हैरान थे। बक्सो उन लोगों से बोली, देखा तमाशा, न जाने कहां कहां की खाक छान कर आ गया है। हम तो समझते थे मर खप गया है। मेरा दादू मरने वाला नहीं है। माली ये कहते हुए एक बार फिर नादी से लिपट गया। अब्बा कहाँ रहे इतने दिन? यह सवाल माली के बाप ने किया और उस सवाल के जवाब में नादी ने अपना दायां हाथ इस अंदाज से लहराया गोया कह रहा हो, सब्र करो, सब कुछ बता दूंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते एक मेला लग गया। जिसने नादी को देखा दौड़कर आ गया। घर आकर नादी दरवाजे के आगे बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। बाकी सब लोग उस चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए। माली, पानी लाओ। माली घर में चला गया और चंद ही लम्हों में पानी से भरा हुआ मिट्टी का प्याला लेकर आया। नादी ने प्याला होठों से लगाया और प्यास बुझाकर प्याला माली को दे दिया। बाबा, अब बताओ ना, कहाँ चले गए थे आप? यह सवाल माली के बाप समर्द ने पूछा। अब आगे क्या होगा? क्या नादी अपने घर वालों को सारी हकीकत बता देगा? जानने को सुनते रहिए जिनजादी और मल्लाह की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अलविदा।